Okay, so this video is going to be about the tenses. We have covered some tenses in class, but I wanted to have a video where that you guys can come back to and revise the tenses. Um, okay, so we're going to start with the most basic tense, which is simple present. All right, so what are the main usages of simple present? We'll get to them. But first, we'll discuss the formula. It's a subject plus main form of verb. That means the first form, like main verb. It's also known as the first form of verb. And then s or es plus an object. So when do we use s or es? Usually it depends on our subject. Okay. For example, if our subject is he, she, it, then the verb that we will use will have an s at the end. For example, he drinks, he drinks, she sings, it runs. Okay, so if we have these pronouns, all right, so that means that the verb that we'll use in simple present will have the s at the end. All right, it, he, she, it, and then if we are using a name, for example, Kathy eats, okay, or John smokes. So if our subject is a singular, it's a singular subject, then we will use a singular second person subject. All right. For example, if we're talking about someone and we're using their name, like Kathy, this is a singular subject, and it is and this is a second person. We're talking about someone else, so we will use s at the end of the verb. All right. But if the subject, for example, if the subject is they, we, or for example, a plural subject, all right, a plural subject, not a singular, but a plural subject, or if it's I, okay, or you. These are the pronouns that do not have an s at the end. All right, so it means these are all basically third person, either third person pronouns, or they refer to more than one person, and I and you are exceptions. We always use the for example, if I say I eat, we will not have an s at the end of the main verb, right? So that means that when we use I, you, they, we, and other plural subjects, we do not put an s at the end of the main verb. All right, so these were the rules. When do we when do we use simple present? We use simple present to talk about mostly routines, habits, and facts. Okay, so we use simple present when telling someone about somebody's routine. Like, for example, I go to school, I study, and then I come back home. So in this entire sentence, you'll notice that a person is is speaking about their daily routine, what they do every day. So
when we want to talk about something that is a part of our daily life that we keep on repeating, repeated actions. अगर आप किसी काम को रोज कर रहे हैं, ठीक है, बार बार करें, लगातार करें, it's part of your life, it's a habit of yours, एक आदत है. So that means that you'll use this, you write these sort of sentiments in simple present. All right. When we also use simple present to for permanent facts, you know, when we're trying to describe someone, that someone can do something. Okay, abilities, it we also use it to to describe abilities, that someone can do something, यानी एक इंसान ये काम करने की सलाहियत रखता है. All right, so we use simple present for that too, for abilities. She sings very well. He draws poorly. So when we're talking about somebody's abilities, कि ये इंसान ये काम कर सकता है या ये इंसान ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, so we write this in simple present. Okay, so talking about abilities and then permanent facts. ठीक है, जब आप किसी इंसान या किसी चीज के बारे में permanent fact बता रहे होते हैं, for example, for example, water boils at 100 degrees Celsius. Okay, so 100 जो water है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पे ही जो है बॉयल करता है. सो इट्स अ परमानेंट फैक्ट, इट कैन बी चेंज्ड. तो अगर आप कोई ऐसा किसी इंसान के बारे में फैक्ट बताना चाह रहे होते हैं जो परमानेंट है, जो बदल नहीं सकता है, तो आप जो है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग थोड़ा और इसमें क्लियर करने की कोशिश करें तो आई study at, for example, Karachi University. I study at Karachi University. So this is a permanent fact about me. ये मेरे बारे में एक fact है जो change नहीं हो रहा. So we will use simple present when talking about that. So जिस इंसान के बारे में भी आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे होते हैं जो उसकी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा है, उसके करेक्टरिस्टिक का परमानेंट हिस्सा है, ठीक है, यानी समथिंग दैट when you're trying to define something, आप उसकी personality traits या characteristics बताना चाह रहे हैं जो उसकी जो सामने वाले इंसान का permanent हिस्सा है, so you will use simple present to define them. All right. Okay. Then we will move on to present continuous. Present continuous is one of my favorite tenses. Present continuous I really like because it has a lot of usages and it's kind of really unique. Why do I like present continuous? We'll talk more about that. The formula is subject plus is, am, are, plus verb, ing form. Okay, verb, ing form, and then the object. Okay, so what can we, when do we use present continuous form or present progressive form? It's used for things that are happening right now. Things that are happening right now, जो चीज़ें इसी वक्त इसी सेकंड हो रही हैं. I am teaching. You are watching a video. Okay, so things that are happening right now, ये सबसे common use है इसका. जो काम अभी अभी इसी second इसी moment पे हो रहा है, हम उसके लिए present continuous इस्तेमाल करते हैं. This is the most common usage. Okay, so what are the other usages? It's used for temporary activities. Temporary activities or facts.
basically when you're trying to talk about something जो कि टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं बट यू आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड, आप वहाँ पे थोड़े वक्त के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आई एम वर्किंग एट दिस ऑफिस फॉर 2 weeks, ठीक है। तो ये जो हमारा काम है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है। तो जब आप अपने किसी टेम्पररी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम जो आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए करेंगे, आप की डेली रूटीन का वो हिस्सा नहीं बनेगा, आपके बारे में वो परमानेंट फैक्ट नहीं होगा, आप वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ वक्त के लिए करेंगे, इट विल बी जस्ट अ टेम्पररी पार्ट ऑफ योर लाइफ, टेम्पररी पार्ट ऑफ योर रूटीन। तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। It is also used for example, अगर मैं कहूँ, okay, so from the last part section of the video, we were talking about temporary actions. Okay, so temporary actions को हम लोग present continuous से denote करते हैं, ठीक है। For example, I am drinking tea, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चाय पीना है, दिस इज़ एन एक्शन जो कि हम लोग थोड़ी देर के लिए करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। ये एक ऐसा काम है जो हम लोग आज कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं, और फिर हम ये काम करके ख़त्म कर देंगे। सो ऐसा कोई भी काम जो आप इस वक्त कर रहे हो जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। अगर वो काम आप अक्सर करते रहते हैं, बार बार करते हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप एक ऐसे काम के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो आप इसी वक्त कर रहे हैं और थोड़ी देर में आप वो काम करके वो काम मतलब ख़त्म हो जाएगा, इट विल एंड, तो उस बात की टेम्पररीनेस को आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस से नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग चेंजेस के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं, ओके। सो दैट चेंज कैन बी इन अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ समथिंग, इट कैन बी वेदर चेंजेस, यानी अगर मैं कहूँ द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर इंक्रीजिंग, तो जो वेजिटेबल की प्राइस है, ठीक है, उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से डिनोट करते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर किसी चीज़ के भी स्टेट में कोई बदलाव आ रहा हो, कोई चेंज आ रहा हो, यानी कोई चीज़ कम हो रही हो, बढ़ रही हो, या किसी भी तरीके का चेंज, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इट वॉज सनी in the morning, but now it is raining, ठीक है। तो वेदर कंडीशंस खासतौर पे जब चेंज होती हैं उनके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे है कि सुबह जो है सनी थी, यानी सन बाहर आया हुआ था, बट अब जो है वेदर में चेंज आ गया है और अब बारिश हो रही है। तो क्योंकि वेदर कंडीशंस टेम्परेरी होती हैं, थोड़ी देर के लिए ही वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं, क्योंकि बारिश है, बारिश हमेशा के लिए तो नहीं होगी, थोड़ी देर के। ओके, सो we discussed अभी के temporary actions, and then for changes हम लोग present continuous इस्तेमाल करते हैं। present continuous is used for another basically another purpose, and it's for future plans, okay। so we use present continuous to talk about future plans, yani I am going to Italy in the spring, okay। so I'm going to Italy in the spring, तो this is a future plan। तो अगर ऐसा ही already कोई event होता है in the future that we have already planned for, that we are going to do in the future, हम उसके लिए present continuous use करते हैं,
Okay, so these were the three main usages of present continuous. Uske baad we'll move on to the next tense, which is present perfect. Present perfect is subject plus have, has, plus third form of verb, okay, plus object. So present perfect usually means that we're talking about an event that takes place in the past, okay, something that happens in the past and continues till the present. All right, we talk about an event that started in the past and continues till the present moment and is still continuing. So we use present perfect when talking about experiences. यानी अगर आप अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाह रहे होते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहे होते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया था, मैं पास्ट में ये करता रहा हूँ, ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस जब आपको शो करना होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट से कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव studied for 2 hours. या फिर for यहाँ पे एक और भी हो सकता है, I have taught English for 5 years. ठीक है, तो यानी हमने ये काम, दोनों काम जो है पास्ट में स्टार्ट किए थे एंड प्रेजेंट मोमेंट तक हम लोग ये करते आ रहे हैं. We can use present perfect to talk about events that just occurred or just finished. यानी हम ऐसे इवेंट्स के बारे में, ऐसे एक्शन के बारे में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी अभी ख़त्म हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका प्रेजेंट में अभी तक अफेक्ट होता है. यानी ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों और अभी 2 मिनट पहले ही ख़त्म हुए हों, टू द पॉइंट के प्रेजेंट में अभी तक उनका अफेक्ट है. ठीक है, या तो उनका अफेक्ट अभी तक है क्योंकि वो जो है इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है, या फिर पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ वो प्रेजेंट में, ताकि प्रेजेंट में अभी तक उसके अफेक्ट्स फील किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव वॉन द मैच. ठीक है, तो ये जो मैच है ये ख़त्म हो चुका है, जो टीम है वो मैच जीत चुकी है, लेकिन जो उनके जीतने के इफेक्ट्स हैं वो अभी तक प्रेजेंट में महसूस किए जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग उनके लिए जो है क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह अगर मैं कहूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो मैंने जो काम था ये पास्ट में स्टार्ट करना, काम जो था वो मैंने करना पास्ट में स्टार्ट किया था. ठीक है, एंड इट हैज़ फिनिश्ड एट द प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, तो प्रेजेंट में आके ख़त्म हो गया. मेरे काम ख़त्म करने के इफेक्ट्स अभी तक महसूस किए जा सकते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो रीसेंट इवेंट्स और एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यूजुअली हम लोग एक तरीका होता है, हाँ, यूजुअली हम लोग फॉर और सिंस ऑफन यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस में. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूजुअली फॉर या सिंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम अलॉटमेंट के लिए. इससे हमें पता चलता है कि जो है काम कितनी देर तक हुआ, कितने अरसे तक हुआ, क्या अभी तक वो काम जारी है या फिर नहीं. ठीक है, हम लोग सिंस तब इस्तेमाल करते हैं when we want to say that something still hasn't ended. ठीक है, किसी चीज़ की स्टार्टिंग हमें पता है और वो चीज़ अभी तक कंटिन्यूड है, पास्ट में स्टार्ट हुई थी एंड इट हैज़ कंटिन्यूड टिल द प्रेजेंट.
ओके। तो हम लोग उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं, बट हम फॉर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की स्टार्टिंग भी पता है और हमें उस चीज़ की एंडिंग भी पता है कि इसने 4 साल यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो हमें पता है कि उसने काम करना कब स्टार्ट किया और काम करना कब ख़त्म किया, या फिर एट दिस पॉइंट कितने साल हो गए इसको काम करते हुए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट नंबर्स के फॉर्म में, जब हमें पता हो कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई और कब तक कंटिन्यूड की है या कब तक ख़त्म हुई आके, हम उसके लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ था या एक्शन, प्रेजेंट में पहुंचा है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। यानी ये काम रुका नहीं है, ये अभी तक हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव, हैज, बीन प्लस ing form, ing form and then object, ठीक है। तो I have been studying for 2 hours। तो यानी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पास्ट में, कंटिन्यूड हुआ है प्रेजेंट तक, और हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसा हमें कोई एक्शन बताना हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू रहा है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, तो हम लोग उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस इज प्रीटी इजी। अगर हम लोग पास्ट सिंपल की बात करें, ठीक है। सो when do we use past simple? Past simple आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि past simple is just used for actions that were completed in the past। यानी एक एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। हम लोग कोई स्पेसिफिक इसकी टाइमिंग नहीं बताते कि ये चीज़ इस वक्त स्टार्ट हुई थी, इतनी तक चली और फिर ख़त्म हो गई। जब हमें सिर्फ ये बताना होता है कि एक एक्शन था, वो पास्ट में ख़त्म हो गया, ठीक है। हमें उसकी स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसकी एंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसके एक प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ ये बताने में है कि एक चीज़ पास्ट में हुई थी, तब हम लोग उसके लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग इसके लिए पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है ये, ठीक है। आई स्लेप्ट, ही क्राइड, शी प्लेड फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग इस तरह ही सिर्फ पास्ट इवेंट्स को बताने के लिए पास्ट सिंपल यूज करते हैं। A thing about past simple is you need to remember कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, तब आपको was या were इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो रहा है या कोई इंसान कोई काम कर रहा है, तो आप वॉज या वर इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट सिंपल में। बहुत सारे लोग लिखते हैं आई वॉज स्लीप, आई वॉज क्राइड, इस तरह करके नहीं। जब भी आपके सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा होगा तो वॉज या वर इस्तेमाल नहीं किया, वॉज या वर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। वॉज या वर हम लोग सिर्फ कब इस्तेमाल करते हैं? पास्ट सिंपल में, ठीक है। वॉज या वर हम लोग सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो हम लोग ऐसे कहेंगे आई
was happy, या फिर the building was big। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ क्या करेक्टरिस्टिक बेसिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हो जो कि आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, अपनी पास्ट परसेप्शंस को, जब आपने कोई चीज़ देखी थी उसके करेक्टरिस्टिक को बताने के लिए किसी चीज़ को डिफाइन करना चाह रहे हो आप, या फिर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, उसे हम तब पास्ट सिंपल में वॉज या वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, यूजुअली वॉज या वर्ड के बाद एक एडजेक्टिव आता है, तो हम लोग जो हमारा नाउन होता है सब्जेक्ट यानी आई यहाँ पर, और यहाँ पे द बिल्डिंग, फिर उसके बाद आता है वॉज, ठीक है, वॉज या वर्ड आता है, एंड देन उसके बाद एक एडजेक्टिव आता है जो कि उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पास्ट सिंपल में हम लोग वॉज एंड वर नहीं लगाते अगर कोई एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, आप वॉज एंड वर नहीं लगाएंगे पास्ट सिंपल में, सिर्फ अगर आप पास्ट में किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो कि वो चीज़ ऐसी थी या वो चीज़ उस तरह की थी, तब आप सिर्फ डिफाइन करते हुए ऐसे सेंटेंसेस में इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन हो रही है, वहाँ पे वॉज एंड वर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस इज अ वेरी इजी टेंस। इसमें हम लोग फिर बस ये बता रहे होते हैं कि पास्ट में एक एक्शन हुआ और फिर वो होता चला गया, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट तक नहीं पहुंचा। एक ऐसा काम जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में काफ़ी देर तक कंटिन्यूड रहा, तो उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो यानी इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग वॉज वर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन पास्ट सिंपल में नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आई वॉज ईटिंग, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, लेकिन अगर हम लोग पास्ट सिंपल में लिखना चाह रहे हों तो आई वॉज एट नहीं होगा, सिर्फ होगा आई एट, वॉज एवर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल होता है। अब एक कॉम्बिनेशन होती है पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल की। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लगातार पास्ट में एक काम करते जा रहे हो, एंड इट गेट्स इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर इवेंट, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो जो लॉन्गर इवेंट होगा जो कि चलता आ रहा था वो लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, देन जिस काम ने उसको इंटरप्ट किया होता है उसको लिखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट सिंपल के अंदर लिखते हैं हम लोग, तो हो जाता है आई वॉज ड्राइविंग एंड देन आई गॉट अ कॉल। तो अगर हमें ये बताना होता है कि हम एक काम कर रहे थे एंड इट वॉज इंटरप्टेड अचानक एक शॉर्टर काम से, सो वी यूज दिस कॉम्बिनेशन, पास्ट कंटिन्यूस फॉर द लॉन्गर एक्शन, पास्ट सिंपल फॉर द शॉर्टर एक्शन। ये होती है इन दोनों की कॉम्बिनेशन। कद हम लोग अगर आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट बेसिकली इससे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं आई वेंट टू द मूवी, आई got into I went to the movie, I got into the car। ठीक है, तो ये दो एक्शंस हैं, पास्ट में हुए हैं दोनों। तो हम लोग बेसिकली ये बताने के लिए कि अगर दो एक्शंस पास्ट में होते हैं और उनमें से कोई एक एक्शन, ये बताने के लिए, टाइमलाइन बनाने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ, हम लोग पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं।
वरना फिर यही सवाल आ जाता है कि हम लोग 5 जगहों पर क्यों सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं और 5 जगहों पे हम लोग क्यों पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्शन होते हैं पास्ट में, और हमें ये बताना होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। पास्ट परफेक्ट में एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड एक और एक्शन उसके बाद होता है, ठीक है, पास्ट में ही। तो ये दोनों एक्शन जो हैं पास्ट में ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है, अगर हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में लिखें तो हम अभी देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा होता है हमारा फॉर्मूला होता है ये। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, आई वेंट टू द मूवी, ठीक है। एक चीज़, हमारा जो पहला एक्शन होता है यानी जो पास्ट में हुआ होता है उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। जो एक्शन क्लोजर टू द प्रेजेंट होता है यानी जो बाद में हुआ होता है उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट में उसका हमेशा पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा, और जो दूसरा कहते हैं एक्शन होगा जो उसके बाद हुआ होगा, जो प्रेजेंट के करीब होगा, जो लेटेस्ट एक्शन होगा उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है और हम लोग इस सेंटेंस को हटा देते हैं हम लोग। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग पास्ट परफेक्ट में टाइमलाइन बनाने के लिए इन दो वर्ड्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। हम इनकी मदद से बताते हैं कि पहले क्या चीज़ हुई और बाद में क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये लिख सकते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। हमारा फर्स्ट एक्शन बिफोर यू अराइव्ड, हमारा दूसरा एक्शन। तो इसमें हमारे पास दो एक्शंस हैं, पहला है काम ख़त्म करना और दूसरा है सेकंड पर्सन का अराइवल। तो उसमें जो काम पहले हो रहा है यानी हम लोग पहले काम ख़त्म कर चुके थे, तो दिस इज़ द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट। तो हम लोग उसके साथ पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। और फिर उसका सेकंड एक्शन है सेकंड पर्सन की अराइवल, तो वो सिंपल पास्ट में आएगी, यानी ये इंसान इसने अपना काम ख़त्म किया था पास्ट में, ठीक है। एंड देन जो दूसरे इंसान का अराइवल है इज दी सेकंड एक्शन, सही है। तो दोनों की टाइमलाइन बनाएंगे कि पहले जो काम ख़त्म करना था वो हुआ था, ठीक है, पहले ये एक्शन हुआ था बिफोर। तो यानी ये जो काम था ये पहले हुआ था, इट हैपेंड बिफोर क्या, बिफोर द सेकेंड एक्शन। तो हम लोग बिफोर और आफ्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन सेंटेंसेस में, ये बताने के लिए कौन सा काम, व्हाट हैपेंड बिफोर एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर। तो हम इसलिए बिफोर और आफ्टर को काफ़ी यूटिलाइज करते हैं इन दो इस टेंस में एंड इन द नेक्स्ट टेंस एज वेल, ठीक है। तो दिस वाज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, इसमें एक एक्शन होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड देन हम लोग कहते हैं कि वो जो काम है इट कंटिन्यूड फॉर अ वाइल एंड देन द अदर एक्शन हैपेंड, और वहाँ पर आकर एक्शंस ख़त्म हो गए, ठीक है। प्रेजेंट तक ये नहीं पहुँचता है, इट स्टार्ट्स इन द प्रेजेंट, इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल in the it starts in the past, it continues for a while in the past, and it ends in the past with the other action, ठीक है। तो यानी पहला एक्शन होता है, थोड़ी देर तक चलता है पहला एक्शन, हम उसको दिखाते हैं कि वो चीज़ कंटिन्यूड रही है। हमारा जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम दिखाते हैं ये चीज़ कंटिन्यूड रही,
and then the second action happened in the past. ठीक है, और फिर यहाँ पर दोनों एक्शन आके खत्म हो गए, तो हम लोग कहते हैं I had been studying for example I had been studying before you arrived. ठीक है, I had been studying before you arrived. तो studying हमारा पहला वो है एक्शन, हम दिखा रहे हैं कि हमने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो होती रही थोड़े अरसे तक until सेकेंड एक्शन नहीं हो गया. ठीक है, until भी अक्सर यूज किया जाता है. until इज अनदर वर्ड जो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि पहला एक्शन कब हुआ और फिर सेकंड एक्शन कब हुआ, ये बताने के लिए कि पहली चीज कब थी और दूसरी चीज कब थी. व्हाट केम बिफोर एंड व्हाट केम आफ्टर. तो हम लोग until भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूजली इसलिए इस्तेमाल होता है, इट्स यूज फॉर अनदर पर्पज. वैसे इट्स यूज फॉर कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, यानी I had been sleeping because you did not come. ठीक है, तो हम ये बताने के लिए किसी चीज़ का किसी चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ हुई है, जब हमें ये बताना होता है कोई कॉज एंड अफेक्ट कि ये चीज़ हुई पास्ट में, उसकी वजह से उसके अफेक्ट पड़ा दूसरी चीज़ पे, उसका रिजल्ट थी दूसरी चीज़. तो यहाँ पर हमारा जो कॉज है वो है दूसरे इंसान का नहीं आना. ठीक है, और अफेक्ट है उसका, उस इंसान के नहीं आने का, कि जो हमारा स्पीकर था वो सो गया. ठीक है, तो सीधा कॉज एंड अफेक्ट शो करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं कि यानी फर्स्ट एक्शन हुआ और उसकी एज अ रिजल्ट दूसरा जो है एक्शन हुआ. ठीक है, तो बिकॉज यू डिड नॉट कम आई हैड बीन स्लीपिंग. ठीक है, तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन हमारी आखिरी टेंसेस आती हैं फ्यूचर. फ्यूचर इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, फ्यूचर टेंस इज रिलेटिवली ईजियर. वी मोस्टली यूज्ड द सिंपल टेंस. ठीक है, फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं हम लोग. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट. तो फॉर एग्जांपल आई विल go to school. Pretty easy, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, इसी तरह future continuous is subject plus will be plus ing form plus object. हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये बताने के लिए करते हैं कि फ्यूचर में हम एक काम स्टार्ट करेंगे और वो फ्यूचर में हम काफ़ी देर तक किसी काम को करते रहेंगे. ठीक है, ये बताने के लिए कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा और मैं ये काफ़ी देर तक करता रहूँगा, तो हम लोग उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं. आई विल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो, यानी कल मैं मूवी देख रहा हूँगा. ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस से हम लोग ये कन्वे करते हैं. प्रीटी इजी. उसके बाद before moving forward, I'd like to talk about a few other usages of a few rules, I guess, for the future tense. In the future tense, for example, it mostly refers to future simple. So, going to, okay, we really in the English language, going to is often used when we're talking about the future. I am going to do this, I am going to do that, I'm going to study today, I am going to
sleep all day. We use the words going to really often when talking about the future. So when exactly do we use them? We use going to when we're talking about plans. Okay, when we've made plans for the future, we use going to. For example, uh, no, not yeah, plans. I mean, when they aren't fixed plans. हम सिर्फ प्लान बना रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. दे आर्ट फिक्स्ड. ये हमारे खुद के प्लान्स होते हैं. दैट व्हाट वी वांट टू डू. ठीक है, what we want to do बेसिकली ये बात हो रही होती है. ठीक है. We use going to for plans, and then we use present continuous for, जैसे हमने पहले भी बात की थी, for fixed arrangements. यानी वो चीज़ें जो हमने फ्यूचर में ऑलरेडी फिक्स्ड अरेंजमेंट कर लिए. जैसे अगर आप इटली जाना चाह रहे हैं फ्यूचर में और आप कह रहे हैं मैं इटली जाऊंगा, तो उसका मतलब है आपने ऑलरेडी टिकट खरीद लिया है. ठीक है, अब ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट बन गई है. सो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट फिक्स्ड अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग lunch with my sister today. So this sentence is a fixed arrangement. It's a fixed plan. जब हम लोग going to इस्तेमाल करते हैं, that means ये अभी भी आपकी ख्वाहिश है. अभी भी आपने मतलब कोई solid आपने कोई solid steps नहीं लिए हैं in order to make that plan come true. All right. So this is a difference between going to and present continuous. So when do we use will exactly? जब हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते हैं कि will is part of the future tense. So हम लोग will exactly इस्तेमाल कब करते हैं? We use will when we are talking about offers. ठीक है, हम लोग जब किसी को ऑफर देना चाह रहे होते हैं. ठीक है, या फिर किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं. ठीक है, in those situations में we often use will. Then we use will for instant decisions के साथ भी हम लोग जो है will लगाते हैं. And then we also use will basically for predictions. Okay, we also use will when we are talking about predictions. Acha. So what does this all mean? ठीक है, offers, promises, instant decisions and predictions. Offers का मतलब है हम लोग जब किसी को ऑफर कर रहे होते हैं, यानी I will drop you off at your house. ठीक है, हम लोग किसी को ऑफर कर रहे हैं ये कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा. ठीक है, तो आप जब किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं, अपनी मदद ऑफर कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं, तब आप विल इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, अब ये प्रॉमिस ज़रूरी नहीं है आप किसी दूसरे इंसान से कर रहे हो, आप अपने आप से भी कर सकते हैं. 5 दफ़ा आप लिखते हैं आई विल गेट एन A+ इन द एग्जाम. ठीक है, तो ये आप अपने आप से वादा कर रहे होते हैं कि आप अपनी खुद की डिटर्मिनेशन बता रहे होते हैं, अपना खुद की पुख्ता यकीनी और पुख्ता ख्याल बता रहे होते हैं. आप अपने आप से वादा कर रहे होते हैं कि मैं हाँ लेकर आऊँगा A+ इस एग्जाम में. तो ये प्रोमिस चाहे आप अपने आप से कर रहे हो और इफ़ यू आर प्रोमिसिंग समवन एल्स यू will. All right, instant decisions, things that you decide at the moment, at the very second, बगैर सोचे समझे अगर आपको डिसीजन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if the bell starts ringing and you suddenly decide कि आप दरवाज़ा खोलेंगे, you say I'll get the door. या फिर who can help me carry this large box, and you instantly decide कि आप ये मेरी मदद करना चाहते हैं, तो you'll say I'll help you. ठीक है,
तो इसी तरह के जो इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो आप फैसले फौरन फौरन लेते हैं एट द मोमेंट, एट द स्पॉट, उनको बताने के लिए आप विल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है प्रिडिक्शन की बात। अब प्रिडिक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हम लोग प्रिडिक्शन में गोइंग टू भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? ठीक है, सो प्रिडिक्शंस का मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो प्रिडिक्शन एक फिक्स्ड चीज़ रहती है, यानी आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि ये चीज़ होगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए विल इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉर्मली ये बताने के लिए कि फ्यूचर में आपके ख्याल में ये होने वाला है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग उसके लिए गोइंग टू भी इस्तेमाल करते हैं। कब हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं और कब हम लोग गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दैट। विल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्या कहते हैं, ऑलरेडी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है किसी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द केक इज डिलिशियस, यू विल लव इट। तो इसमें हम लोग केक को ऑलरेडी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं, केक को खा चुके हैं, अब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस का हिस्सा है इस केक को खाना। सो हम लोग उसके बारे में प्रिडिक्शन देंगे विल इस्तेमाल करके कि तुम्हें ये केक पसंद आएगा। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सामने वाला उस इंसान को केक पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग लेकिन गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को प्रेजेंट मोमेंट में क्या कहते हैं, वो करते हैं ऑब्जर्व। ठीक है, एंड उसकी हिसाब से फिर हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लुक एट द स्काई। ठीक है, लुक एट द स्काई, इट्स गोइंग टू रेन। ठीक है, यानी अगर किसी प्रेजेंट मोमेंट में कोई एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या वो प्रेजेंट मोमेंट में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के रिएक्शंस या फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस, तो उसके लिए हम लोग ऐसी प्रिडिक्शंस के लिए गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई फील वेरी कोल्ड, आई एम गोइंग टू गेट सिक, तो प्रेजेंट मोमेंट में मैं कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड इसके इफेक्ट जाकर फ्यूचर में होंगे। ठीक है, यूजुअली विल और गोइंग टू इज इंटरचेंजेबल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता दोनों के बीच में। ठीक है, सो दीज आर टू वेज जिनसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, विल इस्तेमाल करके एंड गोइंग टू इस्तेमाल करके। ठीक है, प्रिडिक्शंस के फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, उसके अब जो हमारी जो दो टेंसेस रह गई हैं, future perfect and then future continuous, these usually aren't used. ठीक है, these aren't very common. Future perfect, ठीक है, future perfect हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? एक ऐसे एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर में स्टार्ट हुआ एंड देन फ्यूचर में वो एक्शन आके ख़त्म हो गया, तो सम वन एक्शन दैट हैज़ बीन completed इन द फ्यूचर। ठीक है, हम ये बात करने के लिए कि फ्यूचर में एक एक्शन है जो कि ख़त्म हो गया, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय ऑगस्ट आई, इसकी फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस will have plus third form plus object. So this is the formula. So by August, I will have finished my thesis. Okay. So this is the sentence. इसमें जो है हम लोग ये कह रहे हैं कि एक काम होगा जो मैं फ्यूचर में ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट इज़ द टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन जो कि हम फ्यूचर में ख़त्म कर चुके होंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, वो काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट इज़ दिस, एंड इसके बाद
फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, यानी हम लोग बताना चाह रहे होते हैं कि फ्यूचर में एक एक्शन होगा, एन एक्शन विल टेक प्लेस एंड वो कंटिन्यू होगा थोड़े वक्त के लिए। हम लोग जब ये बताना चाह रहे हो कि एक काम होगा फ्यूचर में जो कि लगातार होता रहेगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आई विल have been living in this house for quite a while, ठीक है। यानी उस इंसान ने अभी इस घर में रहना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो कह रही है कि मैं जब इस घर में रहना स्टार्ट करूँगी तो मैं काफ़ी अरसे तक इस घर में कंटिन्यूसली रहती रहूँगी, ठीक है। So that's what we use the future perfect continuous for. And these were the basics of the tenses. I hope this isn't very scattered क्योंकि मेरा इंटरनेट काफ़ी बंद होता रहा था बीच बीच में. So I hope you guys understood all of this, and if you have any questions you can ask me later.